Yes, video you need to on. Amisha ji, Amisha. Hanji, good morning. So how are you all? कैसे हो सारे? ठीक हो? You can speak yourself. अभी तक मैं अनम्यूट कर सकती हूँ अपने आप को. हाँ जी, कैसे हो? क्या हाल चाल है सबका? ठीक हो? Yes, ma'am. एक्चुअली मैं नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं सारी क्लासेस जूम पे ही लेना स्टार्ट कर दूं. इट्स मच बेटर आई गेस. इंटरेक्शन भी हो जाती है बच्चों को, साथ में ही हम ऑन द स्पॉट सारा कुछ करवा भी लेते हैं, है ना? इट्स मच बेटर आई गेस. हाँ जी, कैसे हो सारे? क्या हाल चाल है सबके? अर्नव कैसे हो? I'm fine. Okay. How are you? Okay, I'm good also. That is why I'm here. Otherwise I'm going to be on leave. Yes. I was not well 2 days back. On that day, I was feeling very horrible. And it's now like the weather is turning very, very cold. So because of that, seasonal, we are feeling once sick in a year, है ना? तो वो चीज़ होती है, मेरे साथ तो होती है. So once the season is changing, I need to recover with my body. तो ये चीज़ होती है कि एक बार ही सीजन में मैंने बीमार होना होता है, उसके बाद फिर सारा ठीक हो जाता है. So your body take times to adjust. ठीक है Ma'am, जी? same with me. सबके साथ होता है. वैसे नॉर्मल है हमारी बॉडी, इतना ही तो स्मार्ट है. ठीक है? Shall I start now? कर दो स्टार्ट. तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे. लास्ट हमने क्वेश्चन किया था 6th क्वेश्चन वी वर डिस्कस्ड. सॉरी. We have discussed the 6th question जिसमें हमने किया था there are different people who are coming under social and economic groups. Yes, ma'am. That question we have done. उसके बाद मैंने बोला आराम से करेंगे हम लोग बाकी के questions. ठीक है? So we will start with that today. So we are done with this now. Economic, social. 5th question we have done. 5th question. So identify the social and economic groups which are most vulnerable to poverty. That we have covered till date. Okay. So where are other students? They are not able to join. क्या problem है? I've sent the link to everyone. Almost. Yana is here. Yana is not here, na? She's here, ma'am. Where is he? Okay, Yana. She has joined. Okay. Ma'am, what we will be doing in the extra class? Class, I'm going to do the revision and we will do extra questions. Students who are not able to learn the questions in a better way, I will just tell them how to learn the questions, what are the ways, how you can retain it for longer time period. So I just tell them the methods. Okay, so if you want, that is optional for you. Otherwise, we have the normal class. Okay, morning wali class to aap log laga lete ho already. So it's optional. Whenever I'm just sending this message, I will be always telling you this will be optional for you. Okay. Now, shall I start with the question? आगे वाला next question करें जरा हम लोग. So question the next 6th question. Give an account of interstate disparities of poverty in India. So interstate disparities में देखो क्या क्या चीजें थी हमारी बुक में. So this is on page number. This is on page number है 35. Check it on page number 35. 35.
So 35 में आपके points बनते हैं कुछ? previous Yes. There are certain points. अगर लिखोगे लिखवा दूं? If you want to write, you can write down with me, or I can dictate you. dictate. I can dictate. Okay. So you are ready with the notebooks and all? Everybody is ready? Fine. चलो चलो फिर लिखो आप लोग. So what is here? So लिखो इसका आंसर कहाँ था हमारा? Industry disparities. So first point is there is difference among the proportion of poor people in states. There is difference among the proportion of poor people in states. There is difference among the proportion of poor people in states. Among poor people in states. Second point. Kids from outside, no, I'm just sharing my network. I'm not getting the voice. You're not getting my voice? Ma'am, I'm not understood the first point because sometimes network becomes unstable, maybe yours or mine. So you need to write only. Okay, so what I I'm can not do? sure network. Your voice is cutting. You can write Fine. because when you speak, then the voice starts cracking. Cracking. Now it's cracking. Again, now also it is In cracking. between, like no, in between it starts cracking, and I wasn't able to hear. Like it was only that there is difference among the proportion of people. Okay, I'll just speak out again. No problem. मैं repeat करूँगी 3 बारी तो करती हूँ वैसे ही already. लिखो जरा. There is difference among the proportion of poor people in states. Screen share करने के लिए मेरे पास photographs होनी चाहिए. Then I can share the screen. Answers ऐसे ही मैं आपको dictate कर रही हूँ. ठीक है? चलो, let's see. So there is difference among the proportions of people in states. There is difference among proportion of poor people in states. This is the first point. Second point now. लिख लिया सभी ने? If you're done with the first point, just send me thumbs up quickly. Hurry up. Great. Chalo. So second point. Estimates show. जो आपका यहाँ पे ये पॉइंट ना आपकी बुक में है. मार्केट ऑन 35 पेज राइट हैंड साइड पे जो आपकी है 4th लाइन जहाँ पे लिखा है रीसेंट एस्टिमेट्स. सो आप रीसेंट एस्टिमेट्स से ही कर दो. स्टार्ट विद दैट रीसेंट एस्टिमेट्स. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. मार्क कर लो आप लोग. ठीक है बेटा. रीसेंट एस्टिमेट्स शो रीसेंट estimates. Here, I don't want any music for my class. I don't want any background music while writing the question. Hi. Hanji. Who is speaking? Another one, Jashan. Beta, I am going to mute you. Oi, stop it. मैं सबको म्यूट कर रही हूँ यार. ये काम खराब है ऐसे. Actually, when we enter the class, we are already unmuted, so that's why sometimes it happens. No problem. I will just mute you now. You aren't able to unmute yourself. Whenever you have to speak, you have to just send a message. Okay. Yes. Now everybody is muted. Except me, nobody will speak. मैंने आपकी बोलने की शक्ति ले ली है. ठीक है?
तो अब मेरे पास आ गई आपकी बोलने की शक्ति, अब आप बोलोगे, लिख के बोलोगे, ठीक है? सो इट विल बी विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है? चलो जरा करिए कंटिन्यू। सो यहाँ से था रीसेंट एस्टिमेट्स शो, यहाँ पे वाइल लिखने की जरूरत नहीं, वाइल को काट दो, ठीक है? that average India HCR, that is head count ratio, HCR की full form होती है head count ratio, that HCR जो आपकी लाइन है यहाँ पे was 21.9% in 2011-12, 21.9% in 2011 and 12. States like Bihar, आगे आ जाओ नेक्स्ट नीचे, स्टेट्स लाइक जहाँ पे लिखा है ग्राफ 3.2 शोज, वो वाली लाइन से लेना है हमने। स्टेट्स लाइक, व्हाट हैपेंड सक्षम? Okay, I'll repeat. Fine. So you will be just marking from the fourth line on the right hand side of page number 35. पैराग्राफ जो है फर्स्ट वाला, उसकी जो फोर्थ लाइन है रीसेंट एस्टिमेट्स, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट विद दैट, टिल आप लोग लिखोगे 21.9% 2011-12 तक आप लोग मार्क करोगे। देन उसके बाद स्टेट्स, मध्य प्रदेश, लाइक वो सारा कुछ नहीं लिखना, आपने सीधा करना है जहां पे लिखा है इसकी जो है थर्ड लाइन सॉरी, इसकी जो थर्ड लाइन है वहां पे लिखा है बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी the two poorest states with poverty ratios 33.7 and 37.6% respectively, ठीक है? Till this, that is your second point. So this is your second point, I guess clear? Second point. If you're done with second point, just send me thumbs up. Yes, very good. Fine. So next, आगे देखो। Okay, third point now. Third point, आपके next paragraph में आ जाओ। In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, and West Bengal. So this is your third point. Fourth point. States like Punjab, Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates. So this is going to be the fourth point. Yes, Vamika. What happened? I sent you a message also in chat. I missed after the second point. You said that second point is from recent estimates. So I wrote all the point, including while also. While वाला नहीं लिखना था, मैंने आपको बोला। So please repeat. We will not write while. No. We need to write. I'll just speak out the full line. Recent estimates show. हाँ, नहीं लिखना था. While the all India HCR was 29.1% in 2011 and 12. फिर उसके बाद लिखना था next. States like Bihar and Orissa continue to be two poorest states with poverty ratio of 33.7%, 33.7 and 37.6% respectively. Till this second point था आपका. Done with this? Okay. Yes. This is your second point. Yes, beta. Recent while include करके recent estimate से सबसे पहले हम 2011-12 तक लिखेंगे. Yes. उसके बाद आएगा states like Bihar and Orissa continue to be two poorest states with poverty ratios of 33.7% and 37.6% respectively. Till that second point. Third point देखो. So now I can mute you. Okay. So see the next one. Next one आपको बोला in comparison. There has been third point ये था.
टिल आपने वेस्ट बंगाल तक मार्क करना था. सेकेंड पैराग्राफ एंड टिल आपने वेस्ट बंगाल तक मार्क करना था. हाँ जी जशन, एनी प्रॉब्लम? यस, एनी प्रॉब्लम जशन? Left. Okay. So see the next one. Next is till West Bengal. Okay, next. Fourth point is states like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rates. So this is going to be the fourth point. Fifth point. Kerala has focused more on human resource development. And इसी के साथ ही गला ना, West Bengal land reform measures have helped in reducing poverty. This is the fifth point. Sixth point, fifth point आपका दोनों को include करके हमने किया. Sixth point लिख लो. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. ठीक है? So that is what we are supposed to do for this answer. ठीक है? Next question. So next question was describe the global poverty trends. So what are the trends in global poverty? We have to discuss those. Fine. So this is the next topic that is on page number 35. 35 पे आपका next topic यही है mention. ठीक है? So यहाँ पे आप लोग का first point बनेगा the proportion of people in developing countries living in extreme economic conditions, economic poverty has fallen from 43% to 22% in 2008. ठीक है? Till 2008 तक that is your right answer. First point जो आपका बन जाएगा. हाँ जी बोलो नूपुर, any problem? Yes. मैम मेरी बुक में लिखा है from 36% to 10% in 2015. You can mention like that, no problem. ठीक है. कोई issue नहीं. Year के साथ mention कर दो बेटा. Okay, There is ma'am. no issue. हाँ जी वामिका. Same issue. Ma'am, please repeat. मेरा ना कोई लंबा the proportion of people in developing countries living in extreme poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 35% in 1990 to 10.68% in 2013. No problem. तो you can mention the year with that. आपका जो point है ना बुक में उसके according आप with the year mention कर दोगे तो it is not wrong. It will be correct. ठीक है? वैसे ऐसा question बहुत rare ही होता है कि कोई आ जाए. Otherwise ये question आते ही नहीं है. Data based question बहुत rarely आते हैं. Questions आएंगे what are the factors of production? What are the causes of poverty? What are the dimensions of poverty? What are the issues related to poverty? ठीक है? So questions they will ask you like these. Simple questions आएंगे, इतने complex नहीं आते हैं डाटा वाले. वो कहते हैं इतने बच्चों को बेचारों को इतना मैथ्स तो पढ़ते हैं. यहाँ पे मैथ्स क्यों पढ़ाना है इकोनॉमिक्स में? थोड़ा इजी रखते हैं, इजी फ्रीजी. ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं. So यहाँ पे नेक्स्ट these are अब आपका आ जाएगा, मैं लाइन बोलती हूँ आपको. कहाँ है ये पॉइंट इसका? यस, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट. यहाँ पे लिखो देयर आर डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी अमंग रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड. ये आपकी लाइन देखो, आप लिख लो, ये लाइन लिख लो, बेटर आई गेस. There are disparities in poverty among the regions around the world. Number of poor in China has come down from 85% to 1981. मेरी जो बुक है इसमें ये mentioned है. ठीक है, come down from 85% in 1981 and now it is 6% in 2011. In 6% 2011. ठीक है. Please repeat the second. There are disparities. Okay.
that line which I was speaking, first line. There are disparities in poverty among the regions around the world. There are disparities in poverty among the regions around the world. There are disparities in poverty among regions around the world. ठीक है, उसके बाद the number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 6% in 2011. So And was almost China 30. second or third? China The China point is second or third? सेकेंड वाले के साथ इंक्लूडेड है बेटे, डिस्पैरिटीज के वाले के साथ इंक्लूडेड है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज they have just mentioned in the next, आ जाओ पेज पे. तो जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन सब सहारन अफ्रीका, पॉवर्टी इन फैक्ट, पॉवर्टी यहाँ पे इन फैक्ट लिखा है, वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं. पॉवर्टी रोज फ्रॉम 51% in 1981 to 47% in 2008. In 2008. So सब सहारन अफ्रीकन रीजन में पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी, कम नहीं हुई है, सच रोज बड़ी है. ठीक है, 51% थी 1981 में, उसके बाद उन्होंने कहा है 47% in 2008, फिर मिली है दिखने के लिए. नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा. इसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन, 2008 तक आपने कर लिया था, उसके बाद लिखा है सी ग्राफ 3.3, वो लिखने की जरूरत नहीं है. उसके आगे वाली जो लाइन है, इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 11% in 1981 to 6.4% in 2008. ठीक है, so this is going to be the fourth answer, fourth point. उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, पॉवर्टी हैज आल्सो रीसर्फेस्ड इन सम ऑफ द कंट्रीज, या पर लिखा था फॉर्मर सोशल कंट्रीज, सोशलिस्ट कंट्रीज. फिर रशिया का लिखना है तो लिख दो, फिर पूरा ही लिखो. वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर. ठीक है, सो वहां पे भी अब ये पॉवर्टी दिखनी स्टार्ट होगी थी. ठीक है जी, ठीक है, सो बस बहुत है इतना आंसर हमारा. नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब करंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. हमारी करंट स्ट्रेटेजी क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है? There are two strategies. हमने पढ़ा था, there are two planks. One is promotion of economic growth. Another we have done targeted poverty alleviation programs. ठीक है, we have done two planks कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है इन चीजों के साथ. So government is working with two planks. Planks मतलब दो जो पहलू है उनको पकड़ के उनके ऊपर वर्क कर रही है. ठीक है, government is working on two aspects. One is growth, promotion of economic growth, मतलब हर इंसान को हम लोग अमीर कर दें, हर बंदे की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा दें. यू नो, हर ईयर हर इंसान को डीएनएस अलाउंस मिलता है. व्हाट इज दैट? डीएनएस अलाउंस है महंगाई भत्ता. हर साल चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट भी हमारा इकोनॉमिक जो है लेवल वो इंक्रीज करती है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट प्लान. सेकेंड इज टारगेटेड एलिवेशन प्रोग्राम्स. तो गवर्नमेंट क्या करती है, टारगेटेड कुछ जो जैसे हमने किया था बीपीएल कैटेगरी, एपीएल कैटेगरी, ठीक है, सो पुअर कैटेगरी जो है हमारी, ठीक है, उस सब को लेके वो क्या करती है, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो लॉन्च करती है कि इनको सब क्या मिले, खाना वगैरह मिले प्रॉपर सारा. ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं यहाँ पे. सो ये आपके दो पॉइंट्स आने हैं. ये आपके आ जाओ, पेज नंबर है, दिस इज ऑन पेज नंबर 38. ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ से मार्क कर सकते हो.
Economic growth gives opportunities of job creation within the country and provides stable livelihood to people. ठीक है, ये आपका पॉइंट आप लोग लिखोगे यहाँ से, एंड आ जाओ, जो आपका पेज नंबर 38 है उसके एंड वाले पैराग्राफ में आ जाओ, और एंड वाली लाइंस आपकी 4th लास्ट लाइन देखो. Economic growth widens opportunities and provide resources needed to invest in human development. You can write down from this. ठीक है, इसके आगे आपका आ जाएगा this also encourages people to send their children, including girl child, to schools and hope for getting better economic returns in investing education. ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके. ये आपका सिर्फ आपने 2 हेडिंग्स बनानी है. ये है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर हमने ये पॉइंट्स रिपीट करूं. ओके, सो जो आपके 2 प्लैंक्स मैंने बोला था, इसके अंदर गवर्नमेंट की करंट स्ट्रैटेजीज क्या. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो प्रमोशन के लिए पहली चीज हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट करें. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली लोग वर्क करेंगे. लोग वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बच्चों को भी वो पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिलेगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल वर्क फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, कुछ बंदे जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनके लिए कुछ तो होगा करने के लिए. दे विल अर्न समथिंग, दे विल हैव बेटर लिविंग स्टेटस. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा उनका. तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं. ठीक है जी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से सारी. आप ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो. ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ पे, इसी का जो नेक्स्ट ऑन 39 पेज पे जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, यू कैन इंक्लूड दैट होल पैराग्राफ इन दिस फॉर एक्सप्लेनिंग प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. फॉर एक्सप्लेनिंग प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. हाँ जी, नहीं हुआ क्लियर वहां में क्या? अनम्यूट करो, बोल लो यार. मैम फर्स्ट पॉइंट तो वहां से ही करंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और वो 2 प्लैंक्स वाला. 2 प्लैंक्स को फर्स्ट पॉइंट हुआ. फिर सेकंड पॉइंट कौन सा आपने, वो एजुकेशन वाला बोला था कि पुअर पीपल भी एनकरेज हो. मैंने ये बोला था, आई वॉज टेलिंग यू कि आपने पेज नंबर 38 पे जो है लास्ट पैराग्राफ जो है उसकी जो 4th लास्ट लाइन है वहां से स्टार्ट करना. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस आल्सो एनकरेजेस people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing into education. This is the second point. ठीक है, हम इसी के अंदर बना के पॉइंट्स लिखेंगे अंडर दिस. हाँ जी मनिंदर, यस, unmute yourself and speak there. यस बेटा, हाँ जी, थर्ड पॉइंट बता रही हूँ आपको. थर्ड पॉइंट आ जाएगा तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट प्लैंक्स वाला है, सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट तक, फिर थर्ड वाला दिस आल्सो एनकरेजेस पीपल, थर्ड हुआ ना. आप कंफ्यूज हो रहे हो. सुनो, मैंने बोला 2 प्लैंक्स हैं. ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाला पॉइंट था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, हम प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में ये पॉइंट्स लिख रहे हैं. एक्सप्लेन करें उसको. ठीक है, बताऊं नहीं तो लिख के बता दो अगर आप. ओके, हमने पहले वो मेन पॉइंट लिख के उसका प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है फर्दर. मैं बता रही हूं. I was discussing with you. This is question number. This is question number. कौन सा क्वेश्चन, 8th और 9th? This is 8th question, है ना. 8th का आंसर. एक बार एक ही क्वेश्चन और रह गया हमारा. 8th क्वेश्चन में क्या था, हमने किया था करंट स्ट्रेटेजीज बाय गवर्नमेंट. सो करंट स्ट्रेटेजीज में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 प्लान्स दिए थे हमें. 2 plans for removal of poverty. अगर मैं बात करूं तो ठीक है, 2 प्लान्स दे रहे. उसमें था फर्स्ट, मैंने कहा था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी ये प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
में हम लोग सारा कुछ लिख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रही थी, दैट यू नीड टू राइट। गेटिंग नाउ? ठीक है, समझ आ रही है अभी? इसके अंदर ये पॉइंट्स लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा था एंटी पॉवर्टी टारगेटेड प्रोग्राम्स जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है जी। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसके अंदर आपने पॉइंट्स लिखना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे करके, जो आपके प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम से हमने एक्सप्लेन करने हैं शॉर्ट फॉर्म्स के साथ, ईयर एंड बस थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना, दैट वी नीड टू डू इट, ठीक है जी। बस ऐसे ही करना है। हाँ जी, इतना आइडिया हो गया अब जो मैंने बोला था? एक्सप्लेनेशन लिखनी है, अपनी तरफ से लिखनी है आपने। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बाई चांस 3 मार्क्स में ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने के चांसेस, ठीक है जी। हो गया क्लियर? ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट देखो Yes, अब ma'am. जो आपके टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? नरेगा आ जाएगा, PMRY, PMGY, ठीक है। हमारा ऐसा क्या था, SGSY, ठीक है। PMGY मैंने कर लिया ऑलरेडी, REGP, ये सारे आपके प्रोग्राम्स जो है आपने उनकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उसका ईयर, ठीक है, वो मेंशन करना है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर 5 मार्क्स में आता तो लिटिल बिट यू नीड टू एक्सप्लेन, अदरवाइज ज्यादा नहीं करना। नहीं तो आपके पास शीट ऑलरेडी आप गिवन यू, उसमें सारे प्रोग्राम्स आपको मिले हुए हैं ना, आप गिवन यू वर्कशीट है ना, तो उसमें आप लोग वो कर सकते हो लर्न आराम से, ठीक है। वो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे भी नहीं मिलने वाली। अगर आप सर्च कर लोगे ना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वाली शीट मिल जाए, नो इट्स नॉट अवेलेबल। वो मेरा अपना खुद का मैंने नोट्स क्रिएट करे हुए हैं बच्चों के लिए, कि एक ही आपको डॉक्यूमेंट हो, उसमें आराम से आप सारा इकट्ठा पढ़ के फ्री हो जाओ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ अब आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? सो ह्यूमन पॉवर्टी का आपकी आ जाएगी पेज नंबर, लास्ट में आ जाओ जरा। अगर इसका लिखना है तो लिखवा दो, बेटर है मुझे लग रहा है। व्हाट इज ह्यूमन पॉवर्टी? सो व्हाट इज ह्यूमन पॉवर्टी? लिख ही लो इसका अगर लिखना है तो, बेटर है। इसका आंसर लिखो जरा। वॉइस इज क्रैकिंग, पता नहीं अब फिर मैं चाहता तो टाइप कर दूं, टाइप करूं आपके साथ साथ, आप मेरे साथ लिख लो फिर। आई जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड, है ना। चलो फिर हम लोग लिख रहे हैं। It takes lot of time to share. चलो, I'm going to take the text and here is my आंसर। क्या था हमारा आंसर? नंबर 9, 9th आंसर। तो पॉइंट जो हमारा आंसर है फॉर क्वेश्चन ए, ह्यूमन पॉवर्टी, पहले लिखोगे ह्यूमन पॉवर्टी refers to the lack of essential human necessities. Necessities like, what are the basic necessities for life? यहाँ पे necessities वो नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना। लाइक यहाँ पे आएगा एजुकेशन, एजुकेशन या लिटरेसी वर्ड भी यूज कर सकते हो आप लोग, एजुकेशन और लिटरेसी, सो वी कैन यूज बोथ द वर्ड्स। एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके बाद है हमारे पास हेल्थ केयर के बाद नेक्स्ट इज
and basic standard of living. Basic standard of living, full stop. So these attributes are the characteristics. These attributes cannot be measured by a minimum level of minimum income level. Minimum income level and require the study of both the individual in the state in which we resides. ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ठीक है, so human poverty refers to the lack of essential human गरीब किसको बोलेंगे? ठीक है, essential human necessities like education नहीं है लोगों को मिल रही, अच्छी health care नहीं मिल रही, basic standard of living नहीं है लोगों के पास. ठीक है, these attributes cannot be measured in a minimum level of income. Minimum income level. वैसे गड़बड़ हुआ है. मिनिमम इनकम लेवल. ठीक है, and require the study of both individual and the state in which we resides. So हमने individual level पे भी करना है और state level पे भी करना है. ठीक है, got now? So human poverty इसको include करके करेंगे. पहली चीज, education मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही है उस एरिया में. अगर तो मिल रही है तो obviously we are rich. ठीक है, अगर health care facilities सारी available है तो then we are rich. ठीक है, अगर बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के पास एक है प्रॉपर. ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जो हमें 1000 उन्होंने बोला था, 816 वाला बोला था कि इनकम तो होनी चाहिए मिनिमम लेवल. अगर उतना है तो देन वी आर नॉट सफरिंग विद ह्यूमन पॉवर्टी. अगर ये चीजें नहीं है, लैक है इन चीजों का, तो वी आर सफरिंग विद ह्यूमन पॉवर्टी. क्लियर है ये आंसर? क्लियर है? आगे वाला जो क्वेश्चन है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर, जहाँ पे शिवारामन की स्टोरी थी. See on page number this, it is given here, who are the poorest of the poor. So it is mentioned here, page number 34, जहाँ पे 34 लिखा है ना, उसके ऊपर वाली लाइन देखो, लास्ट 3 लाइंस जो है, women, children, especially the girl child and the old people are poorest of the poor. That is clear answer. Page number 34 जहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक निकालो, स्टोरी ऑफ शिवारामन है. ऑन द लास्ट जो आपकी लाइन, 3 लाइंस है, लास्ट वाली 34 जहाँ पे लिखा उसके ऊपर वाली 3 लाइन. ठीक है, सो तीनों आपका आंसर है. वुमेन, ठीक है, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड. ठीक है, सो दैट इज योर आंसर. नाउ इसके बाद, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द वर्कशीट. ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स आज खत्म हो गए.
हाँ जी नूपुर जी बोलो, अब क्या है आपकी क्वेरी? मैम क्वेरी नहीं, वो लास्ट वाला लिखा हुआ है मैंने पहले। हाँ मैं वही It कह रही हूँ ना, आपको provides- ऑलरेडी शीट में मैंने दिया हुआ था आपको। हाँ जी बोलो। It provides 100 days of wage, substantial development to address the cause of natural calamities. 1/3 jobs are reserved for women. It provided employment to SCs 23%, STs 17%, and women 53%. An average wage increase from 65 in 2006 and 2007 to 132 in 2013 and 14. यस राइट, वेरी राइट। The poorest ठीक है of the poor. हाँ जी, स्क्रीन स्टॉप नहीं करनी थी। Who are the poorest of the poor? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पेज नंबर 34 निकालो अपनी बुक का। टेक आउट योर पेज नंबर 34। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग कर सकते हो, अभी बोल सकते हो आप लोग। बेचारे आपको चुप करवा दिया मैंने। हो रहे हो है ना, ठीक है अब हो रहे हो ऐसे ही। अब कर देते हो, हो गया अब हो रहा है। हाँ जी बोलो। SCs, STs. नहीं नहीं, मैंने बोला था आपको। वुमेन, गर्ल। यस यस, पेज नंबर 34, जहाँ पे 34 लिखा है उसके ऊपर 3 लाइंस है, वो तीनों योर आंसर। वामिका। हाँ जी, वुमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल, इन्फेंट। यस राइट, दैट इज योर आंसर। And female infants are the poorest of the poor. यस 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 यस, ठीक है, हो गया आंसर। अनु मुझे कब से एक ना डाउट था एमजी नरेगा में, हाँ जी जो लिखा है ना, the scheme provided employment to 220 crores person days of employment to 4.78 crore households. ये 7-8 करोड़ जो है वो लोग हैं, 220 करोड़ जो है डेज है, इतने दिन का काम दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे मैं Shall नेट I- पे भी कहते पर्सन डेज, लाइक कितने देश की एम्प्लॉयमेंट है ना उनको मैं- मिली। हाँ जी, 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी है, 100 डेज आउट ऑफ 365 64 डेज। एक्सक्यूज मैम, यस यस बोलो बेटा, स्पीक आउट यार। STSY की जो डेट थी, मैम जो आपने STSY की जो डेट थी वो आपने कैसे याद करवाई थी? SGSY मैंने बोला था मैम आपने हमारा इंडिया, कुछ हाँ मैंने बोला था इंडिया कब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1949। 49 में 50 इयर्स याद ऐड कर दिया तो गोल्डन जुबली मैंने बोला था, तो 1999 ऐसे बोला था मैंने। सो इट्स 1999। ठीक है, सो यू रिमेंबर विद दिस, ओके फाइन। सो अगर ज्यादा स्ट्रेटजीज पढ़नी होगी, ऐसी सीखनी होगी कैसे हम लर्न करें आंसर्स, तो यू कैन अटेंड इवनिंग क्लास। ठीक है, दैट्स योर ऑप्शनल, मैं ये नहीं कह रही कंपल्सरी है। You can learn more strategies how we can learn these things. Okay, so thank you so much. God bless you all. Take care. Stay happy. Stay healthy. Bye bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am.